حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ وندے ماترم لازمی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن غیر دستوری اور ناقابل قبول۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا سخت ردعمل، نوٹیفیکیشن واپس لینے پر زور۔ تلنگانہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، کانگریس کو ملی سبقت، BRS کو بھی خاطر خواہ کامیابی۔ بودھن میں مجلس اتحاد المسلمین کے 12 امیدوار منتخب۔ جوگولاما گدوال ضلع ودے پلی بلدیہ پر تلنگانہ جاگرتی کا قبضہ۔ مرکزی حکومت تلنگانہ سے اضافہ 18 لاکھ میٹرک ٹن چاول حاصل کرے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ملاقات۔ 14 فروری کو منایا جائے گا دارالسلام ڈے۔ رمضان کی آمد کے پیش نظر یوم تاسیس قبل از وقت تقریب تاریخی دارالسلام میں منعقد ہوگی۔ MIM پارٹی کا اعلان۔ ویلنٹائن ڈے روزز کے لیے ہے، ریڈ فلیگز کے لیے نہیں۔ پولیس کمشنر سجنار کی وارننگ، آن لائن رومانس اسکیم سے نوجوانوں کو ہوشیار رہنے کا دیا مشورہ، اور کہا محبت انتظار کر سکتی ہے مگر اسکیمرز نہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مرکزی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن پر شدید اعتراض کیا ہے، جس میں سرکاری تقریبات اور اسکولوں میں قومی ترانے جن گن من سے قبل وندے ماترم کے تمام اشعار پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے پریس بیان میں اس فیصلے کو غیر دستوری، مذہبی آزادی اور سیکولر اقتدار کے منافی اور سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کے برخلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی بحث اور ربندر ناتھ ٹیگور کے مشورے کے بعد صرف ابتدائی 2 بند تک محدود رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ یہ گیت بنگال کے پس منظر میں لکھا گیا تھا اور اس میں درگا اور دیگر دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا اور وندنا کی بات کہی گئی ہے۔ مغربی بنگال کے الیکشن سے پہلے اسے نافذ کیے جانے کے پیچھے بھی BJP سرکار کی جو بھی مصلحت ہو، مسلمان اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے ایمان و عقیدے سے راست متصادم ہے۔ مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہے۔ اسلام خدا کی ذات میں ذرا برابر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایک سیکولر حکومت کسی مخصوص مذہبی پس منظر کے حامل اشعار کو دیگر طبقات پر لازمی قرار نہیں دے سکتی۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے توحید سے متصادم ہے، اسی لیے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بورڈ نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر نوٹیفیکیشن واپس لے، بصورت دیگر اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں ہوئے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ توقعات اور ایگزٹ پولز کے مطابق ہی نتائج رہے اور ان میں کانگریس کو سبقت حاصل ہوئی ہے۔ جو نتائج سامنے آئے ہیں ان کے مطابق کانگریس کو جملہ 1438 وارڈز پر کامیابی ملی ہے، جبکہ BRS نے بھی خاطر خواہ مظاہرہ کرتے ہوئے قریب 735 وارڈز پر جیت حاصل کی ہے، جبکہ BJP کو 270 وارڈز پر کامیابی مل پائی ہے۔ جبکہ جہاں تک بلدیات کا سوال ہے تو اس میں بھی کانگریس آگے ہے۔ کانگریس پارٹی جملہ 85 بلدیات پر قبضہ کرتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ BRS کو جملہ 29 بلدیات پر تسلسل حاصل ہو رہا ہے۔ BJP کو 6 بلدیات پر قبضہ مل سکتا ہے، جبکہ دیگر جماعتوں کا 3 بلدیات پر قبضہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کے کویتا نے تلنگانہ جاگرتی نے ایک بلدیہ پر حیرت انگیز قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ ریاست کی مختلف بلدیات میں مجلس اتحاد المسلمین نے بھی مقابلہ کیا تھا اور کئی بلدیات میں مجلس کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مجلس نے سب سے بڑی کامیابی بودھن میں حاصل کی ہے، جہاں پارٹی کے 12 امیدواروں کو جیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اضلاع میں مجلس کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ نتائج کے اعلان کے بعد کامیاب امیدواروں میں خوشی کی لہر دیکھی گئی ہے۔ کانگریس اور BRS کے کامیاب امیدواروں نے جشن بھی منایا اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی۔
कारकुनों में मिठाइयां तकसीम की गई। वोटों की गिनती का आज सुबह 8 बजे से आगाज हुआ था और कुछ ही देर के बाद से नताइज और रुझानात का सिलसिला शुरू हो गया था। बल्दियाती इंतखाबात में तमाम जमातों ने पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला किया था और जारिहाना अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। 11 फरवरी को वोट डाले गए थे और आज नताइज का ऐलान किया गया, यानी कि 13 फरवरी को नताइज का ऐलान किया गया है। रियासत में हुए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इनमें जहां असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस में देखा गया है, वहीं बीआरएस से मुअत्तल शुदा तेलंगाना जागृति सरबराह के कविता को भी खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है। के कविता ने जोगुलामा गढ़वाल जिले में विदेपल्ली बल्दिया में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इनके उम्मीदवार ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के निशान पर मुकाबला किया था और वहां इन्हें शानदार कामयाबी हासिल हुई है। कविता ने 10 रुकनी बल्दिया में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और इनके जुमला 8 उम्मीदवारों को यहां कामयाबी हासिल हुई है। इस तरह विदेपल्ली बल्दिया में तेलंगाना जागृति का कब्जा हो गया है। ये कामयाबी तेलंगाना जागृति के लिए अहम कामयाबी तस्वुर की जा रही है। के कविता ने इस कामयाबी पर विदेपल्ली बल्दिया के राय दहिंदों से अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। कविता ने कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और इनसे मुलाकात करने वाले कामयाब उम्मीदवारों की गुलपोशी भी की। उन्होंने इन उम्मीदवारों को अवाम की खिदमत के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने और हमेशा अवाम के दरमियान रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना भर में आज म्युनिसिपल इंतखाबात के नताइज जारी हो चुके हैं। आदिलाबाद के 49 वार्ड्स में से ही बीजेपी 21, कांग्रेस 11, बीआरएस 6, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 6 और 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया पर कब्जे के लिए मैजिक फिगर 27 है। मैजिक फिगर किसी भी पार्टी को नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आदिलाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें से आदिलाबाद म्युनिसिपल पर कब्जे के लिए एक मैजिक फिगर के लिए 49 वार्डों में से 27 काउंसलर का जीतना ज़रूरी था। किसी भी पार्टी को इसमें से सबकत नहीं आई। बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटों पर और इसी तरह बीआरएस, एमआईएम ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी 5 सीटों पर वो कामयाब हुए हैं। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की जहां पर मजबूत पकड़ थी, कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों की वजह से ही कांग्रेस को 10 मकामात पर शिकस्त हुई, जिनमें से 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए और 5 में से जाफरानी पार्टी और दीगर के पार्टी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद हैं। अगर ये मुत्तहिद होकर सही फैसला अगर लेते तो आदिलाबाद के अंदर आज ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार काउंसलर मुंतखब होकर काउंसिल में जाते थे और आदिलाबाद कांग्रेस पर म्युनिसिपल पर कांग्रेस का कुछ ना कुछ कब्ज़ा हो सकता था। ये आज की तफसीलात हमने सारी हमारे कैमरे के ज़रिए से आप देख सकते हैं और तमाम तफसीलात हमने आवाम तक पहुंचाई है। वीवन चैनल आदिलाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिलाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत शुक्रगुजार और गिड़गिड़ा के हम लोग जितने भी जीते हैं दुआ भी करेंगे, शुक्राना भी पढ़ेंगे। और जो लोग हमारे जो सेकंड पोजीशन पे कुछ लोग हारे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो लोग हमेशा काम करते रहेंगे, अवाम के दरमियान रहेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर तग़ज़िया व सिविल सप्लाईज प्रहलाद जोशी से मुलाकात करते हुए इनसे ख्वाहिश की है कि तेलंगाना से इजाफी 18 लाख मैट्रिक टन ग़िज़ाई अजनास हासिल करे। ये ग़िज़ाई अजनास मानसून की फसलों से हासिल की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वजीर सिविल सप्लाईज एंड उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मरकजी वजीर से दिल्ली में इनके क़यामगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मानसून फसल से जुमला 53.73 लाख मैट्रिक टन ग़िज़ाई अजनास हासिल करने का फैसला किया गया है। ताहम तेलंगाना में ग़िज़ाई अजनास की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और इजाफी फसलें हुई हैं।
ऐसे में मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो तेलंगाना से इजाफी 18 लाख मैट्रिक टन ग़िज़ाई अजनास हासिल करे। उन्होंने मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो 10% डिस्काउंट पर ये अजनास हासिल करे और इस सिलसिले में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हिदायत जारी की जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चावल की मिलों को भी 10 लाख मैट्रिक टन इजाफी चावल हासिल करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में बेहतर फसलें हुई हैं और किसानों की पैदावार भी अच्छी हुई है। ऐसे में मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो तेलंगाना से इजाफी चावल हासिल करे ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। रियासती वजीर माल व इत्तलात व ताल्लुकात आमा मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई के मसले पर तबादला ख्याल किया। रियासती वजीर ने कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात आमा श्रीमती CH प्रियंका और चीफ मिनिस्टर के CPRO डॉक्टर जी मंसूर के साथ तफसीली जायज़ी इजलास मुनअक़द किया। रियासती वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर अहल सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई अमल में आए। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट यूनियन के साथ मुशावरत के बाद जियो 103 जारी किया गया है और साबिक़ा तरीक़ेकार को मज़ीद शफ़ाफ और आसान बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि तब्दील शुदा ज़ाब्त के तहत रियासत में 24,706 एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे, जबकि साल गुज़िश्ता 23,000 कार्ड्स जारी किए गए थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई एक रवां दवा अमल है और रियासती हुकूमत सहाफ़ियों के वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के अहद की पाबंद है। सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सुतून है और हुकूमत इसकी हर मुमकिन मदद करेगी। माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया है कि इस साल दारुस्सलाम डे 2 मार्च के बजाय 14 फरवरी को मनाया जाएगा। पार्टी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के 19 फरवरी से आगाज़ के पेश नज़र यौम तासीस की तकरीब को क़ब्ल अज़ वक्त मुनअक़द करने का फैसला किया गया है। ये तकरीब तारीख़ी सदर दारुस्सलाम दफ्तर में मुनअक़द होगी, जहाँ शुरका को शाम 6 बजे तक पहुंचने की हिदायत दी गई है, जबकि जलसे का बाकायदा आगाज नमाज मगरिब के फौरन बाद होगा। मुल्क भर से पार्टी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। इंतजामिया की जानिब से हजरत शाह खामोश दरगाह, पान मंडी रोड, रॉकेट ग्राउंड, वेटरनरी हॉस्पिटल और अनीसुल गुरबा के करीब पार्किंग के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि नुमाइश के पेश नज़र एग्जीबिशन रोड पर गाड़ियां पार्क न करने की अपील की गई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में इंतजामी तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड को भी 3 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। अब शहर में हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी जोन्स कायम कर दिए गए हैं। 3 जोन्स में वाटर सप्लाई बोर्ड की तकसीम अमल में लाई गई है। कहा गया है कि वाटर सप्लाई बोर्ड के हुदूद को कोर अर्बन रीजन इलाके तक तौसी फराहम कर दी गई है और तीनों ही जोन्स में इंतजामी सहूलियात के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया है। एन सम्राट अशोक को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैदराबाद मुकर्रर किया गया है, जबकि एन पंकज को मलकाजगिरी और एम संतोष को साइबराबाद जोन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। इस दौरान HMWSSB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मिस्टर मनिक मित्तल को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है और बोर्ड के रोजमर्रा उमूर और मैनेजिंग डायरेक्टर की मदद करेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने संगारेड्डी की सगाची इंडस्ट्रीज में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े के पस मंज़र में रियासत की बड़ी और औसत सनतों में आतिशज़दगी की रोकथाम के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मौसर फायर सेफ्टी निज़ाम नस्ब करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुनाक़दा आला सतही इजलास में उन्होंने वाज़े मैनुअल की तैयारी रियासती व ज़िली सतह पर रेवेन्यू, पुलिस, इंडस्ट्रीज, लेबर, हेल्थ, फायर सर्विसेज और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमों के क़याम और बाकायदा मुआयनों के जरिए सनती इदारों, हवा मंजिला इमारतों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी है कि मुआयनों की तफसीलात सरकारी ऑनलाइन डिश बोर्ड पर अपलोड की जाएंगी और मुलाजमीन व वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि सगाची वाक़े में
ہلاک افراد کے خاندانوں کو ایکس گریشیا جاری تحقیقات اور عدالتی پیش رفت میں بھی رپورٹ طلب کی۔ اجلاس میں اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے چوکسی بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ شہر میں پچھلے 2 ماہ کے دوران پیش آئے متعدد آتش زدگی کے واقعات کے بعد ہائیڈرا نے اعلان کیا ہے کہ مارچ کے دوسرے ہفتے سے فائر سیفٹی معائنوں میں شدت لائی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والے دکانوں اور کمرشل عمارتوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ اولڈ سٹی میں منعقدہ فائر سیفٹی بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر اے بی رنگناتھ نے خبردار کیا کہ آگ کے شعلے صرف 30 سیکنڈ میں پھیل سکتے ہیں اور گرمیوں کے آمد کے ساتھ خطرات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنوری میں سنگین خلاف ورزیوں پر 9 دکانیں سیل کی گئی تھیں، تاہم تاجر تنظیموں کی درخواست پر 1 ماہ کی مہلت دی گئی تھی تاکہ حفاظتی تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ ادھر ماہ رمضان کی آمد اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر MIM کے رکن اسمبلی چارمینار میر ذوالفقار علی نے تاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سامان ذخیرہ کرتے وقت احتیاط برتیں اور باقاعدہ سیلف چیکنگ کریں۔ حالیہ دنوں میں نامپلی میں پیش آئے واقعات نے تشویش بڑھا دی ہے، جہاں 7 فروری کو تلنگانہ فورنسک سائنس لیبارٹری میں آگ لگنے سے اہم فائلیں جل گئی، جبکہ 24 جنوری کو ایک فرنیچر شاپ میں مشتمل 4 منزلہ عمارت میں آتش زدگی کے سبب 2 بچوں اور ایک معمر خاتون سمیت 5 افراد دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ شہر کے مضافاتی علاقے مادھاپور میں ہائیڈرا نے ایک وسیع اینٹی ایکروچمنٹ آپریشن کے دوران تقریباً 11 ایکڑ سرکاری اور جھیل کے اراضی کو غیر قانونی قبضے سے آزاد کروا کر تقریباً 2200 کروڑ مالیت کی زمین واپس حاصل کی ہے۔ اس آپریشن میں مونڈی کنٹا جھیل کے قریب غیر مجاز میکینک شاپس، آئرن اینڈ سٹیل کے ٹھیکے اور متعدد دیگر دکانیں جو ہر ماہ کروڑوں روپیوں کا کرایہ کما رہی تھیں مسمار کی گئی ہیں، جبکہ 30 سے زائد دکانوں کے عارضی ڈھانچے بھی تخریب کیے گئے ہیں۔ حکام نے قبضہ مٹانے کے بعد علاقے میں فینسنگ کر دی ہے تاکہ مستقبل میں دوبارہ غیر قانونی قبضہ نہ ہو سکے، اور مقامی باشندوں نے انتظامیہ کی اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، ساتھ ہی علاقے کی ترقی اور جھیل کی خوبصورتی کے لیے فروغ کی بھی اپیل کی ہے۔ ویلنٹائن ڈے سے قبل حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار IPS نے نوجوانوں کو آن لائن رومانس اسکیم سے ہوشیار رہنے کی وارننگ جاری کرتے ہوئے منفرد انداز میں پیغام دیا کہ ویلنٹائن ڈے ریڈ روزز کے لیے ہے، ریڈ فلیگز کے لیے نہیں۔ CP سجنار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جب آپ ڈیٹنگ ایپس اور سوشل میڈیا پر محبت تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور آپ کے بینک بیلنس پر نظر رکھے ہوتا ہے۔ کمشنر کے مطابق فوری محبت کے دعوے، بیرون ملک ملازمت کی کہانیاں، اچانک ایمرجنسی، ویزا یا کسٹمز پر تحفہ، پھانسنے کا بہانہ یا آپ کو گھر والوں سے دور رکھنے کی کوشش، یہ سب دھوکے بازوں کے عام ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے پہلے اعتماد جیتا جاتا ہے اور پھر رقم، گفٹ کارڈ، کرپٹو کرنسی یا ذاتی معلومات مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی انجان شخص کو رقم ہرگز نہ بھیجیں اور اگر کوئی شک ہو تو فوراً اپنے اہل خانہ یا قریبی دوستوں سے مشورہ کریں، کیونکہ محبت انتظار کر سکتی ہے مگر اسکیمرز نہیں۔ حیدرآباد کے سنتوش نگر ڈویژن میں عوامی مسائل کے حل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت سرگرم عمل ہے، جہاں بنیادی یونٹ کے ذمہ داران اور مقامی مکینوں کے ساتھ مل کر شہری شکایات کے نشاندہی اور فوری ازالے کی کوششیں جاری ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد الصحابہ میں حاضری دینے کے بعد رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، جن میں 40 لاکھ روپے کی لاگت سے CC روڈ کی تعمیر اور 10 لاکھ روپے کے سیوریج منصوبے شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی عوام سے براہ راست ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور نچلی سطح پر مؤثر حکمرانی کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ عوامی خدمت اور ترقیاتی کاموں کی نگرانی کو مزید تیز کیا جائے۔ بعد نماز جمعہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے سنتوش نگر ڈویژن میں جو روڈوں کا کام شروع ہوا ہے اس کا انسپیکشن کیا گیا ہے
जुमला 40 लाख के रोड संतोष नगर कॉलोनी में और 10 लाख की सीवरेज लाइन का काम हुआ है। जुमला 50 लाख के कामों का आज इंस्पेक्शन किया गया है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिला जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संतोष नगर डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ मिलकर कामों को अंजाम दे रही है। आज तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मेरे साथ में मौजूद है। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम मोहल्ले वाले भी आज के इस दौरे में मौजूद थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद के कदीम इलाके नवाब साहब कुंटे में जुमेरात की रात देर गए तकरीबन 11:30 बजे उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मकान की दीवार अचानक मुनहदिम होकर साथ वाले घर पर जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। जख्मियों में 65 साला जकिया, 40 साला रजिया, 10 साला सुलेमान और 13 साला फौजिया शामिल हैं। इत्तला मिलते ही फलकनुमा पुलिस फौरी तौर पर जाए वकू पर पहुंची और मुकामी अफराद की मदद से मलबा हटाकर मुतासरीन को निकाला गया, जिन्हें फौरी इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक जकिया की टांग में फ्रैक्चर और रजिया के सर पर शदीद चोटें आई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा के रुकनी असम्बली मोहम्मद मुबीन भी मौके हादसे पर पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साबिक कारपोरेटर और मुकामी कारकुनों ने रेस्क्यू कामों में अहम किरदार अदा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। चार जने भी गच्चीबोली पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमेरात की शाम एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां कैश मैनेजमेंट सर्विस CMS की एक ATM में रकम जमा करवाने वाली वैन का ड्राइवर तकरीबन 57 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शाम तकरीबन 4:30 वैन एक्सिस बैंक के ATM पर रकम लोड करने पहुंची थी और इसमें ड्राइवर अजीत उर्फ शिवा के अलावा 2 कस्टोडियन और एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। कस्टोडियन बैंक के अंदर रकम जमा करने में मसरूफ थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड वॉशरूम गया हुआ था। इसी दौरान ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाते हुए वैन समेत नकदी लेकर फरार होने की वारदात अंजाम दी। बादजा मुलजिम वैन को तेलापुर के करीब छोड़कर रकम लेकर रूपोश हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश जारी है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। वंदे मातरम लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन गैर दस्तूरी और नाकाबिले कबूल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सख्त रद्दअमल, नोटिफिकेशन वापस लेने पर जोर। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान, कांग्रेस को मिली सबकत, BRS को भी खातिर ख्वाह कामयाबी। बोधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 12 उम्मीदवार मुंतखब। जोगुलामा गढ़वाल जिले विदेपल्ली बल्दिया पर तेलंगाना जागृति का कब्जा। मरकजी हुकूमत तेलंगाना से इजाफा 18 लाख मैट्रिक टन चावल हासिल करे। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। चौदह फरवरी को मनाया जाएगा दारुस्सलाम डे। रमजान की आमद के पेश नज़र यौम तासीस क़ब्ल अज़ वक्त तकरीब तारीखी दारुस्सलाम में मुनक़्क़द होगी। MIM पार्टी का ऐलान। वैलेंटाइन डे रोजेस के लिए है, रेड फ्लैग्स के लिए नहीं। पुलिस कमिश्नर सजनार की वार्निंग, ऑनलाइन रोमांस स्कैम से नौजवानों को होशियार रहने का दिया मशवरा और कहा मोहब्बत इंतजार कर सकती है मगर स्कैमर्स नहीं। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।